Hello everyone. Today we will study the next topic, that is types of polygons. So let us start. First we will study some basic concepts like diagonals. What is a diagonal? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Now what is meant by non-consecutive? Consecutive means side by side, यानी साथ साथ लगे हुए दो बिल्कुल अगल बगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तो हमारी पॉलीगन की साइड होती है, लेकिन जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं डायगोनल्स. फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्क्वायर वी हैव टू डायगोनल्स. Same ways, in an octagon we have 20 diagonals, right? You can see that consecutive vertices are not joined. Non-consecutive vertices of polygons are joined to form diagonals. Now, interior and exterior of a simple closed curve. What is meant by interior and what is meant by exterior of a curve? So, if this is clearly not a simple closed curve, but if this is a region, then what is the interior of this region and what is the exterior of this region, we will see. Interior means inside. Anything that is inside this orange portion is the interior, and anything that is outside it is exterior. Clear? Now comes first category of polygons, that is convex polygon. If each interior angle of a polygon is less than 180 degree, then it is called a convex polygon. अगर हर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब आप समझ गए अंदर का, पॉलीगन के अंदर का हर एंगल अगर 180 डिग्री से कम है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन. 180 डिग्री से बड़े एंगल को हम लास्ट क्लास में अपने पढ़ चुके हैं, हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. तो इसका मतलब है कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कोई भी रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स लाइज इन द एक्सटीरियर. ओके, वी विल सी विद दिस फ्यू एग्जांपल्स दैट in a convex polygon in which there is no angle greater than 180 degree, no interior angle to be precise, greater than 180 degree, then उसका कोई भी डायगोनल का कोई भी पार्ट पॉलीगन के एक्सटीरियर यानी बाहर नहीं होगा. दिस इज़ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. ओके, you can see all the angles are either acute angle or obtuse angle. None of the angles in the interior of the polygon are reflex. There are no reflex angles, and both the diagonals are also in the interior of the polygon. Next, this is a pentagon. All the angles in the interior of pentagon are less than 180 degree, and all the diagonals are also completely inside the polygon. Hence, both of these are examples of convex polygon. Next is concave polygon. Concave polygon is just opposite of convex polygon. In concave polygon, at least one angle of polygon is more than 180 degree. At least one. ठीक है, सारे के सारे होना नहीं ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक भी अगर मोर देन 180 डिग्री है तो भी वो कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा. In this type of polygon, some portion of diagonals lies in the exterior of the polygon. इस टाइप के पॉलीगन में किसी न किसी डायगोनल का कोई पोर्शन पॉलीगन के बाहर ज़रूर लाया करता है. देखते हैं हम with few examples. In this you can see which angle is greater than 180 degree. This one. This is greater than 180 degree, right? And all the other angles are clearly visibly less than 180 degree. And one of the diagonals that connects two non-consecutive, डायगोनल की डेफिनेशन क्या थी कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना चाहिए. अब सी और ई क्या ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं? नहीं, इनके बीच में डी है ना, तो सी और ई नॉन कंसेक्यूटिव हुए. इनको अगर आप ज्वाइन करने चलोगे तो किसी भी तरीके से आप
पॉलीगन के अंदर से ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ये बाहर से ही ज्वाइन हो पाएगा। तो ये जो डायगनल है CE, डायगनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो डायगनल है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन ये डायगनल कहाँ है? एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन में है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। In this one, which angle is greater than 180 degree? This interior angle is clearly greater than 180 degree. Same as the last example, F and D are non-consecutive vertices, and if you join them, you find a diagonal that is in the exterior of the polygon. Next, this one, here also D and B are non-consecutive vertices, and if you join these you will get the diagonal in exterior of the polygon, and the angle which is greater than 180 degree is this. Next classification is regular and irregular polygon. Let us first see regular polygon. Regular polygon is a polygon which is both equilateral and equiangular. Equilateral का क्या मतलब है? Equilateral means all sides equal. हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्विलैटरल पॉलीगन का भी क्या मतलब होगा? सारी साइड्स इक्वल होंगी. सेम वेज इक्विएंगुलर, that means all angles also equal. So such a polygon in which all the sides are equal and all the angles, एंगल, जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं तो हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है. जब तक एक्सटीरियर वर्ड ना यूज़ करें, सिर्फ एंगल बोलने का मतलब है इंटीरियर एंगल. तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इट इज़ इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर. इसके सिंपल एग्जांपल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल. अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल. एंड अ रेगुलर पेंटागन. ओके, रेगुलर पेंटागन इज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल. नेक्स्ट इज इर्रेगुलर पॉलीगन. इर्रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच इज़ नॉट रेगुलर. रेगुलर की कंडीशन क्या थी कि हमारी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे. तो इर्रेगुलर पॉलीगन में कुछ इक्वल हो भी सकती हैं साइड्स और कुछ नहीं भी इक्वल हो सकती हैं. तो सम साइड्स में बी इक्वल, सम में नॉट बी इक्वल. ओके, तो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल. और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, इर्रेगुलर पॉलीगन कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों हो सकते हैं. कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो हैं जिनके इंटीरियर एंगल लेस दैन 180 डिग्री हैं. और कॉन्केव पॉलीगन कौन से हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर दोज जिनके इंटीरियर एंगल लेस दैन 180 डिग्री हैं, लेस दैन 180 डिग्री. और कॉन्केव पॉलीगन कौन से हैं? जिनके इंटीरियर एंगल्स ग्रेटर दैन 180 डिग्री हैं. राइट, ये दोनों ही तरीके के हो सकते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन. ऑल्सो ऑल द कॉन्केव पॉलीगन्स आर इर्रेगुलर. सारे के सारे कॉन्केव पॉलीगन्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर ही होते हैं. क्यों? क्योंकि कॉन्केव पॉलीगन कौन से हैं? ग्रेटर देन 180 डिग्री वाले. और जब कोई एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो बाकी सारे एंगल्स तो उससे डिफरेंट ही हैं. तो इक्विएंगुलर नहीं हुआ ना वो. जब वो इक्विएंगुलर नहीं हुआ तो वो इर्रेगुलर हो गया. राइट, तो ऑल द कॉन्केव पॉलीगन्स आर इर्रेगुलर. वन एग्जाम्पल इज़ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कैसे एग्जाम्पल है इसका? क्योंकि रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड तो इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल हैं, बट दिस साइड एंड दिस साइड आर नॉट equal, right? AD and DC are not equal, so all the sides are clearly not equal. Next example is a irregular hexagon. You can see all the sides are not equal. Next, now tell me, this is a concave polygon or a कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्केव पॉलीगन होगा तो क्या होना चाहिए? इसमें एक रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए. इसमें क्या ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है? यस, दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. ऑल्सो E एंड C आर नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस. और इनको ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल भी हमारा एक्सटीरियर में है. अब ये इर्रेगुलर होगा कि नहीं?
ऑब्वियसली होगा, क्लियरली आप देख सकते हैं ये एंगल ए और एंगल डी किसी भी तरीके से इक्वल नहीं हो सकते, राइट। कुछ भी हो जाए, ई और डी, ए और डी, ये डी एंगल किसी भी इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्विएंगुलर, हेंस इट इज़ irregular. That's it for now. Watch the next video for angle sum property of polygons. Thank you and have a nice day.